Hey guys, so once again we are back with the twofold effects, right, that we are practicing since long. So before starting with the worksheet number 2, let's go through the rules once again, go through the accounts once again. There are personal account, real account and nominal account. Personal account will include name of person, name of organization, capital, drawings, liabilities, prefix and suffix to the income and expenditure, right? Then real account will include all the assets, and nominal account will include all the expenses and losses, all the gains and profits and the incomes, right? Then we studied what the rules. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, राइट? सो वी स्टडीड दैट in our previous sessions. We studied the twofold effects that has been happening. So let's get started with again the practice of the same. practice शुरू करें एक बार वापस से. This is your worksheet number 2. Avni started with the business. ऐसा कुछ बोला गया है क्वेश्चन में, राइट? जस्ट अ मिनट. So Avni started a business with cash rupees 15,000 and furniture of rupees 5,000. See, Avni started a business, मानी कि business शुरू किया है, right? With cash and with furniture of rupees 5,000. Can I write like this? Cash 15,000 and furniture 5,000. Both are what? My assets, so it will be my real account. And capital will be total 20,000. And that will be what? My personal account. Debit what comes in, credit the giver. Correct? Is it now 100% completely all right? Then Avni took away goods of rupees 300 for personal use. Goods are going out. Goods are going out, and who is taking the goods? The owner is taking the goods. Avni is taking the goods, right? Goods are going out and the owner is taking the goods. So it is treated as what? Drawings, yes or no? So we will be writing what? Drawings and goods. Correct? Drawings. कौन सा account? Personal account. And goods, real account. Debit the receiver, credit what goes out, easy. Then goods of rupees 500 withdrawn for personal use, again drawings, personal use hai, and goods are going out, so goods. This will be personal, this will be real. Debit the receiver, credit what goes out. Now we are pretty much clear with the rules and all. Started business with cash rupees 2,000, furniture rupees 1,500, goods rupees 3,000 and loan of 10,000 from RF. Now I would like to break this transaction into two parts and do it. So let's do it. Cash आया है 2,000 का. Furniture is there 1,500 का. Goods are there 3,000 can. Here I am stopping my transaction. बाकी का transaction I'll be doing it in few seconds. And can I say ये सारी assets कौन लेके आया? Owner लेके आया. So it is what? Capital, yes or no? So here I'll be writing capital on and on कितने की? 3 plus 2 5 6,500 हुआ total मिला के. Correct? Can I say all this are what? Assets or real account. And capital personal account. Debit what comes in, credit the giver. यहाँ तक तो सब सही है, all good. Then ये हो जाने के बाद लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम आरव. 10,000 की लोन भी लेके आया है, जो भी ओनर है वो लोन के पैसे लेके आया है. करेक्ट? आरव की लोन 10,000 की वो बंदा लेके आया इन द बिजनेस. तो मैं क्या लिखूंगी इन दिस केस? पैसे आए मेरे पास, आई बी राइटिंग कैश. एंड याद करो लोन है तो आरव्स लोन वी विल बी राइटिंग
So here it will be what? Real. Here it will be once again what? Personal. Debit what comes in? Credit the giver. Tarak's loan वाला एक आया था जो हमने करा था, if you remember. So this is just like that, same. I hope it is clear. फिर paid for life insurance premium for wife rupees 500. Life insurance premium and cash, right? Is it? Is it so? Think twice. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या हो गया? ड्राइंग्स हुआ लाइफ, और वो भी वाइफ की लाइफ का प्रीमियम हमने बिजनेस में से भरा. सो आई वुड बी राइटिंग ड्राइंग्स एंड कैश, पर्सनल एंड रियल. डेबिट द रिसीवर, credit what goes out. Then a personal scooter was sold for rupees 5500, and out of this cash of rupees 4000 was brought in the business. See, this fourth one was good, I'm making a start, and here 6 is also good, I'm making a star again. See, जो अच्छे वाले हैं, अब तो इतने सारे 99 transactions we did in the form of practice. Now we are doing this. Then we will be doing the homework sheet as well. So जो अच्छे transaction है, I'm just putting the star over there. A personal scooter was sold for rupees 5500, and out of this of cash of rupees 4000 was brought in the business. See, 5500 का personal scooter था, जिसमें से जो हमने 5500 का स्कूटर हमने बेचा, हमें 5500 रुपीज़ मिले. सी, इन हिज पर्सनल लाइफ बंदा स्कूटर बेच दे, फर्नीचर बेच दे, घर बेच दे, या वो खुद बिक जाए, वी जस्ट डोंट केयर. हम कौन से पर्सपेक्टिव से देखेंगे? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे. बिजनेस में कितने पैसे आए? 4000 आए. जस्ट लुक एट दैट, 4000 आर कमिंग इन द बिजनेस. सो वी विल बी राइटिंग व्हाट? Cash and capital, real and personal. Debit what comes in? Credit the giver. Is it fine? Then paid for Narayan's college fees, paid for son Narayan's college fees rupees 20,000. Son की college fees, so college fee debit and cash credit, right? Right? Is it? Is it so? No, the answer is no. सन की कॉलेज फीस भरी हमने बिजनेस के पैसों से. What? Drawings again. So drawings and cash. Debit the receiver and credit what goes out. Just a minute here. I just personal and real. आपको वही सीक्वेंस फॉलो करनी है. भले मैंने पर्सनल रियल के पहले डेबिट क्रेडिट लिख लिया. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, डेटर्स रुपीज 4,000 एंड क्रेडिट रुपीज 3. समझना अच्छे से. हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड वन. कैश है, डेटर्स है. मैम, डेटर्स कहाँ से पैदा हो गए बिना बिजनेस करे? हो सकता है पर्सनली खुद का कर रहा होगा और फिर बिजनेस, उसी चीज़ का बिजनेस खोल दिया, तो पुराने डेटर्स कैन बी देयर, राइट. अब डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कैश हो गई, इतना ये लेके आया. जनरली हमने क्या देखा है कि भाई ओनर इज ब्रिंगिंग द असेट, तो असेट को हम डेबिट कर देते हैं, ओनर इज द गिवर को ओनर को क्रेडिट कर देते हैं. अब तक ऐसा था, पर इन दिस केस ओनर इज ब्रिंगिंग इन द लायबिलिटीज. अब देखो ध्यान से, ओनर क्या लेके आ रहा है? ओनर तो लायबिलिटी लेके आ रहा है. खुद तो एक तो कैपिटल लिखेंगे, यानी खुद तो एक इंटरनल लायबिलिटी है ही. जितना ये कैश एंड डेटर की अमाउंट कितनी है? 10,000 एंड 4,000. 14,000 तो उसको हम पे करने ही वाले हैं. करेक्ट, क्योंकि वो क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया. कैपिटल है बिजनेस में, राइट. एंड हमने क्या देखा था कि भाई कैपिटल इज नथिंग बट द इंटरनल लायबिलिटी. और क्या मैं उसको 14 पे कर पाऊंगी फ्यूचर में? कभी द आंसर इज नो, क्योंकि 14 के सामने वो और क्या 3,000 का तो क्या लेके आ रहा है? एक और लायबिलिटी लेके आ रहा है. तो ऑलरेडी डे 1 से आई एम सपोज टू पे 3,000 टू समवन. ये तो गलत हो गया. तो हम कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे? दो इफेक्ट तो देनी पड़ेगी ये चीज की. समझ. कैश आई बिजनेस 10,000 की, डेटर्स आई 4,000 के. करेक्ट. दिस बोथ आर रियल. डेबिट व्हाट कम्स इन? अब कौन लेके, मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ, कौन लेके आया? ओनर. कैपिटल
क्रेडिट द गिवर। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसे भी लोग लेके आया, दैट इज द लायबिलिटी अगेन, जिन लोगों के पास से मैंने कुछ लिया हुआ होगा, so I am supposed to pay to them, right? Creditors मेरी liability हुए। दोनों what I am right, personal credit। मैम पैसे कितने, कैपिटल में कितना क्रेडिटर्स में कितने, 14,000 डेबिट साइड पे है, कैपिटल में 11,000, क्रेडिटर्स में 3,000। कैसे, क्या ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं। वापस से बोल रही हूँ, शांति से समझ। पैसे और डेटर असेट्स है, वो आई बिजनेस है, बंदा कैपिटल के तौर पे लेके आया, दैट इज फाइन, गुड, 14,000 के। पर साथ साथ में 3,000 के वो क्रेडिटर्स भी लेके आया, यानी एक लायबिलिटी और खड़ी कर दी उसने। इन दैट केस माई कैपिटल विल बी हाउ मच, ओनली 11,000, क्योंकि 3,000 को तो वो क्रेडिटर्स लेके आया ना, तो वो मैं माइनस कर दूंगी ना, क्योंकि उसकी लायबिलिटी फिर कितनी हो गई, सिर्फ 11,000 की। अंडरस्टूड। सो रियल अकाउंट में क्या आएगा, कैश एंड डेटर्स, debit what comes in, or even if you are treating debtors as personal account, then also debit the receiver ही होगा, क्योंकि debtor मानी हमने जिसको सेल करा है वो। you should be clear with that now। and credit क्या करेंगे, credit the giver, एक तो capital and दूसरा क्या, creditors, क्योंकि उन लोगों ने हमें कुछ दिया है तभी तो creditor बने हैं वो हमारे, right? I hope you are clear with the same। now let's move ahead। this was, I can put 2-3 stars over here, इतना अच्छा transaction। Goods costing rupees 960 was distributed as free sample। मैम नॉन इकोनॉमिक, फ्री सैंपल्स पढ़ते ही हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये नॉन इकोनॉमिक है, एंड यू आर रॉन्ग। हियर इन दिस केस हमें कुछ फ्री सैंपल में नहीं मिला है, जो फ्री में मिला है फ्री में बेच दिया, जो आगे आया था, राइट? ये फ्री में मिले और फ्री में बेच दिए, दैट इज नॉट द केस ओवर हियर। यहाँ पे क्या है, हमारे गुड्स हमने फ्री सैंपल्स के तौर पे किसी को दिए हैं, देखो ध्यान से। सो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हुआ, मैंने एडवर्टीजमेंट करनी होगी तभी तो दिए होंगे, एंड गुड्स हुआ, करेक्ट? तो नॉमिनल, रियल, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Paid tuition fees of daughter rupees 14,000। Now it is easy, drawings and cash, I am not writing it, I hope you will be fine with the same। goods of 1,500 were purchased for personal use। personal use के लिए goods buy करे, पर business के पैसों से buy करे। goods of rupees 14,000 were purchased for personal use, that too from business का पैसा। तो क्या करूँगी मैं, definitely ड्रॉइंग्स एंड कैश, क्योंकि पैसे तो अपने बिजनेस के ही गए। पर्सनल, रियल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इजी, कैश एंड कैपिटल, कैश इज कमिंग इन, सो डेबिट द कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैपिटल, पर्सनल, क्रेडिट द गिवर। bought goods of 4,000 in business by the owner रमेश। ओनर रमेश गुड्स लेके आया बिजनेस में, गुड्स एंड कैपिटल, क्योंकि ओनर लेके आया ना, रियल एंड पर्सनल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। विथड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में वो कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे गए वो ध्यान दो। और पर्सनल यूज तो ड्राइंग्स तो आंख बंद करके आ ही जाता है, तो ड्राइंग्स एंड कैश, पर्सनल एंड रियल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक इज ऑल्सो मीन्स पर्सनल, राइट? और बैंक में से गए हैं, सॉरी, तो ड्राइंग्स एंड बैंक, again personal and real, debit the receiver, credit what goes out, easy। अब हमें स्पीड समझ में आ रही है, ये स्पीड अब मैं धीरे धीरे करके, अब से जो ट्रांजेक्शन, whatever self practice transactions also that I am going to solve, you'll find a bit speed in that, because अब तक हमने सब आराम आराम से शांति शांति से किया है ट्रांजेक्शन, राइट? सो नाउ we'll be doing it a bit faster। चलो, देन सोल्ड गुड्स ऑफ 500 ऑन कैश, कैश एंड गुड्स,
both are real. Debit what comes in, credit what goes out. Easy. सोल्ड गुड्स टू राजेश. राजेश सुन के ही क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. सो राजेश एंड गुड्स personal and real. Debit the receiver, credit what goes out. Purchase goods of 800 from Mallika. Again name. So goods and Mallika. Real and personal. Debit what comes in, credit the giver. Purchase goods of 1000 from Arpita for cash. For cash, for cash, for cash. पैसे गए. Goods and cash both are real. Debit what comes in, credit what goes out. Sold goods of 1200 to Kunal on cash. On cash. So cash and goods both are real. Debit what comes in, credit what goes out. Received goods of 200 as free samples. हमने रिसीव करे फ्री सैंपल्स में, कुछ गया नहीं है अपने पास से, हमने किसी से फ्री सैंपल्स में रिसीव करे. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, whatever you may write. Paid salary of 800 to accountant in cash, right? सैलरी पे करी, अपना एक्सपेंस हुआ, सो सैलरी एंड कैश इज गोइंग आउट. नॉमिनल एंड रियल. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, credit what goes out. I hope you are clear with this 22 transactions that we are doing from our worksheet 2, जिसमें 3-4 बहुत ही अच्छे ट्रांजेक्शन्स है जो मैंने स्टार मार्क करके रखे हुए हैं. वेरी गुड ट्रांजेक्शन. यू शुड रिपीटेडली सी द सेम. एग्जाम के अगले दिन पे एक बार देख लेना है ताकि गलती ना हो. नाउ यू कैन सी द सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट. देयर आर ए से लेके एफ तक के ट्रांजेक्शन्स आर देयर, जिसमें धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है. ए में कुछ 10 ट्रांजेक्शन्स है, बी में 23, देन सी में अगेन 10, डी में 17, ई में 21 एंड एफ में 39. दिस ट्रांजेक्शन्स यू आर सपोज टू सॉल्व इट ऑन योर ओन. If there is any doubt or difficulty, you may contact me, but you are supposed to do it on your own. I hope you all are clear with this 22 transactions that we did today.